Welcome to another conversation by Prophet Realtors. Today we are not here to sell you any property, but we are here to understand one. So here we have Mr. Dipesh, a representative from Signature Global, to help you understand the project Sarvam. Thank you so much for joining us today, Mr. Dipesh. Thank you, Aditi. Thank you so much. Okay, so Mr. Dipesh, let's start with the most basic question. What exactly is Sarvam trying to be? So, Sarvam is basically the meaning of Sarvam is everything. So, what Signature Global is trying to do is we are trying to give you everything in this project. That is Sarvam. Okay, that's great. And you use words like mind, body, and soul quite prominently. Yes. What does that actually mean, and what are you trying to convey to the people? Right. So, Sarvam is basically based on wellness theme, in which we are giving you theme on mind, body, and soul. Right. सो अगर आप ऐसे समझो इस चीज़ को कि वेलनेस से ओरिएंटेड काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पहले आ चुके हैं, ठीक है. कई लोग बात करते हैं इसमें किड सेंट्रिक होम बना रहे हैं, कई लोग सीनियर सिटीजन लिविंग बना रहे हैं, बट सिग्नेचर ग्लोबल ये हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली वेलनेस की थीम को डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें हम माइंड, बॉडी और सोल जो आप बोल रहे हो तीन टर्म्स, इसमें हम तीनों से रिलेटेड कई ब्रांड्स को हम लोग साइन करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन आवर क्लब हाउस. Okay, that's really great. राइट. So basically, Gurgaon has many luxury projects in their city. Why should a person look at Sarvam instead of those luxury projects? Can you just give me 3 reasons for the same? Sure, Aditi. So number 1 is location, right? Number 2 is the pricing, and number 3 is the brand. We are Signature Global. We are a reputed branded firm. We are a listed company, and the location is Dwarka Expressway, right? So Dwarka Expressway का ग्रोथ कॉरिडोर अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है. जो आज की डेट में डेवलपमेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा द्वारका एक्सप्रेसवे पर ही है. राइट. एंड द प्राइसिंग, अगर आप पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे को स्टार्ट करें, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें, तो इस प्राइसिंग के अंदर इससे अच्छा प्रोजेक्ट कोई और नहीं है. सो दीज आर द 3 रीजंस. Understandable. So now my question to you is that is Sarvam basically designed for end users, investors, or both? Actually, Sarvam is designed for both, I can say, because Sarvam is the project जो ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ पर हर तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें आपको बेनिफिट्स मिलने हैं. नंबर 1 इज द लोकेशन. एज आई टोल्ड यू, वी आर सिटिंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे. सो यहाँ पे लाइक अगर आप पास्ट में भी जाते हैं तो एवरी 3 years के अंदर यहाँ पे प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हुए हैं. राइट. सो इफ यू आर अ इन्वेस्टर और एंड यूजर, इफ आई कैन से, लाइक, सो दोनों केसेस में अगर हम जाते हैं तो हमें उसके बेनिफिट्स मिलते ही मिलते हैं. लाइक एक इन्वेस्टर हमेशा ये देखेगा कि उसका पैसा अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा. अदिति, इफ यू आर अ कस्टमर, इफ यू आर अ बायर, आप इन्वेस्टमेंट करते टाइम ये देखोगे कि आज मैं फॉर एग्जाम्पल 1 CR की कोई प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो 3 साल में वो कितना अप्रिशिएट करेगी. अब फॉर एग्जाम्पल 3 साल बाद अगर आप वहां रहते भी हो तो आपको इस चीज से बहुत अच्छा लगेगा सोच के कि मेरा वो पैसा अप्रिशिएट हुआ तो मेरी इन्वेस्टमेंट एक करेक्ट जगह हुई. सो आई कैन से बोथ. Right. Exactly. That's a good answer. So I have heard a lot of rumors that you have partnered with brands, like 8 brands, right? Right. So what are their names and why did Sarvam decided to partner with such brands? So number 1 is this is not a rumor, right? It's a real thing. You heard it right. We have partnership with 8 brands exclusively depending on the wellness theme. Right. Number 1 is Tatva Spa. Number 2 is Matrix Dance Academy. Number 3 is Ajivasan Music Academy. And there are like 4-5 other brands also. The reason why we bring them is, again, the wellness theme. So, हर एज ग्रुप का पर्सन, मैं ऐसे कह सकता हूँ इस चीज़ को, जैसे मैंने आपको बताया कि आज की डेट में लोग वेलनेस पे काम कर रहे हैं. हम लोग फिजिकली कितना फिट हैं वो हम कैसे देख सकते हैं. आज की डेट में आप देख रहे हो कि मैं कहता हूँ 20 से 30 के बीच में लोग डायबिटिक होते जा रहे हैं. Exactly. लोगों को बीपी की प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं. सो ये ब्रांड्स एक्चुअली क्या करेंगे, जब मैं पूरे दिन वर्किंग हूँ, मैं मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक टाइम ही नहीं है कि मैं जिम जा पाऊँ या मैं योगा कर पाऊँ. इनफैक्ट मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता. अच्छा, अब इसको हम लोगों ने रिलेट करा है हर एज ग्रुप के साथ. कैसे? सो ये ब्रांड्स में बेनिफिट क्या होगा कि मैं योगा करूंगा तो भी मेरा माइंड, मेरी बॉडी एंड सोल तीनों रिलैक्स होती है. अगेन, मैं अगर स्विमिंग करता हूँ, सो वी आर ब्रिंग माइकल फिल्प्स स्विमिंग अकेडमी. सो माइकल फिल्प्स जैसी स्विमिंग अकेडमी हम लेकर आ रहे हैं, तो उसमें बेनिफिट्स क्या है? मैं फिजिकली फिट होता हूँ कहीं ना कहीं. अगेन, स्विमिंग से मेरा माइंड, बॉडी, सोल रिलैक्स होता है. मेरे बच्चे के लिए वो बेनिफिशियल है.
तो यहाँ पर सर्वम के अंदर स्पेशली मैं कहना चाहूंगा अपनी ऑडियंस से, सर्वम के अंदर जो लोग प्लान कर रहे हैं प्रॉपर्टी लेने का या कहीं भी कर रहे हैं, तो ये देखें कि आगे वाले टाइम में हमारा पैसा अप्रिशिएट कर रहा है, इज अनदर थिंग, वो छोड़ देते हैं अभी कि पैसा तो इंक्रीज हो रहा है, द्वारकेश्वर से आज अप्रिशिएशन है, बट बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे, मैं पर्सनली अगर को कैसे इंप्रूव कर रहे हैं वो, दैट्स द पॉइंट। सो कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, उसके लिए 8 ब्रांड्स आपको डायरेक्टली हेल्प करते हैं। But as you mentioned, time. Right. So if the person doesn't have the time to go in these two, then राइट, सो बिकॉज ये ब्रांड्स मेरे अपने क्लब हाउस के अंदर है, राइट। right. टाइम नहीं है इसका मतलब ये नहीं है मैं घर आने के बाद सोचूंगा कि मुझे जिम जाना है, मैं टायर्ड हूँ, उसके You'll लिए have मुझे to कम्यूट करना travel. पड़ेगा, राइट। उसके लिए मुझे कम्यूट करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, और वो जब सारी चीजें मुझे मेरे प्रोमाइसेस के अंदर मिल जाती हैं तो इट विल हेल्प अस। Very convenient. Very Right. Okay, so what are the typologies? So typologies are basically we have 3 BHK 2 toilets here. The sizes starts from 1815 square feet. Then we have 3 BHK 3 toilets also, which starts from 2040 square feet. Then we have 3 BHK 3 toilet with servant rooms also. Then maximum sizes 4 BHK 4 toilet with utility. Okay, that's So the sizes starts from 1815 and the maximum size is 2495 square feet. 2495. Right. Great. That's right. Okay, so now let's say I am a buyer sitting in front of you with a budget of 3 CR. Now, why should I stretch myself to buy Sarvam? And most importantly, I need a reason. Why should I not buy Sarvam? Okay. So there is no reason to not buy Sarvam. I can say you can buy Sarvam. Like you should buy Sarvam. And the reasons are, first, जो प्राइसिंग मैंने अभी आपको बताया उस प्राइसिंग के अंदर विच इज 16,950 रुपीज ऑल इन, जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं, ये पूरे द्वारकेश्वर पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जो हमारी थीम है वेलनेस थीम विच वी डिस्कस्ड अर्लियर, सो इस थीम पे बेस्ड कोई और प्रोजेक्ट आपको इस एमिनिटीज के साथ में नहीं मिलेगा। नंबर 3, द क्लब हाउस। सो क्लब हाउस में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं द्वारकेश्वर से, आप देख रहे होगे टिकट साइज के अकॉर्डिंगली उनके क्लब हाउसेस की जो साइजेस हैं वो कंपैरेटिवली आपको छोटे मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो क्लब हाउस मिल रहा है वो 1.5 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, राइट। एंड द एमिनिटीज, राइट। सो इतनी एमिनिटीज के साथ में ऐसे टिकट साइज के ऊपर आपको इतनी प्राइम लोकेशन पे एक अच्छी प्रॉपर्टी लेने का, तो मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा रीजन हो सकता है तो आपको प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। इनफैक्ट ये सारे रीजन है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेच करना चाहिए और आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। एंड द बजट यू आर टॉकिंग अबाउट 3 CR। 3 CR में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आज कस्टमर 3 CR में गुड़गांव में प्रॉपर्टी देखेगा तो इन एमिनिटीज के साथ में शायद मैं भी बोलूंगा नहीं मिल पाएगा आपको, मतलब कुछ और तो नहीं मिलेगा। Exactly, with the premium Sarvam is the only solution. So you are Right. trying to make me buy this Sarvam. You should buy. You should give me a check now. Okay, so what is the exactly possession timeline? So we will we launched this project in year 2025 December month of December, and the timeline is 5 years. 5 years. So almost 6 months already gone, and the construction starts. So you will get it this project. You will get this project in month of January, if I am not wrong, January 2031. Completion timeline is 5 years. You will get it in January 2031. Okay, that's Right. great. So how do you see this micro market evolving in the next 5 to 7 years? So I can say 5 to 7 years is a long time. In my opinion, next 3 years में almost इस प्रोजेक्ट के प्राइसेस डबल है। Next 3 years. Next 3 years. And there are 2-3 reasons. Number 1, हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे हैं, इनफैक्ट बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे हैं। Number 2, the connectivity. So metro station is coming up in 37 sector. So गुड़गांव का सबसे पहला मेट्रो स्टेशन जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे पहला मेट्रो स्टेशन कनेक्ट होगा वो 37 सेक्टर में कनेक्ट होगा, जो हमसे बहुत नियर बाय है। Right. And number 3 is the global city. सो ग्लोबल सिटी अभी हाल फिलहाल में कई चीज़ें गवर्नमेंट ने भी अनाउंस करी हैं यहाँ पर, अगर आप न्यूज़पेपर में कई आर्टिकल्स वगैरह भी प्रिंट हुए हैं अगर उसमें चेक करें तो। सो ग्लोबल सिटी 1080 एकर्स का HSIIDC का प्रोजेक्ट है, राइट। सो सिग्नेचर ग्लोबल का इसको डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा बिकॉज हम लोग सिर्फ ग्लोबल सिटी से हार्डली 5 मिनट्स के डिस्टेंस में हैं, राइट। राइट। इंडिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग, मतलब आज की डेट में अगर हम बात करें तो बुर्ज खलीफा, मतलब हम दुबई के बारे में बात करते हैं जनरली लोगों के दिमाग में सीधा बुर्ज खलीफा आ जाता है। राइट। हम पेरिस की बात करते हैं तो सीधा लोगों के आईफिल टावर आ जाता है।
सो इंडिया के अंदर जो टॉलेस्ट बिल्डिंग अनाउंस हुई है वो हमारी ग्लोबल सिटी में हुई है, नेक्स्ट टू आवर प्रोजेक्ट, मतलब लाइक हार्डली 5 मिनट के डिस्टेंस पे। सो मैं कह सकता हूँ यहाँ के रेजिडेंट्स को वो इंडिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग, जिसके लिए लोग आगे बात करेंगे इंडिया के अंदर ये टॉलेस्ट बिल्डिंग है, तो उनको अपनी बैल्कनी से भी दिखने वाली है। एग्जैक्टली राइट, 700 मीटर्स की हाइट, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 830-50 के आसपास बुर्ज खलीफा की हाइट है। राइट और इंडिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग 700 मीटर्स अनाउंस हुई है, जिसको इसकी हाइट है, टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडिया, राइट। एंड जो उसकी विड्थ है वो समवेयर अराउंड 7 एकड़ के आसपास है। तो 7 एकड़ का लैंड तो रिजर्व करा गया है राइट 1080 एकड़ के लैंड पार्सल के अंदर से, जिसके अंदर वो टॉलेस्ट बिल्डिंग अनाउंस हो रही है। प्लस वहाँ पे भाई इंटरनेशनल कंपनीज आ रही हैं, डेवलपमेंट्स हैं। इतना बड़ा जब डेवलपमेंट आता है ना आरती, तो उसके सराउंडिंग वाले एरिया में ना ऑटोमेटिकली प्राइसेस हाइक हो जाते हैं। सो दीज आर द रीजंस, लोकेशन इज ऑसम, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने जा रही है, 100% डेवलपमेंट होनी ही होनी है। राइट। तो चलो अब वाइंड अप करते हैं और अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। Sure. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको सर्वम में लेना हो तो आप लोगे? सी, अगर मुझे प्रॉपर्टी लेनी होगी तो मैं सर्वम डेफिनेटली लूंगा, और मैं डेफिनेटली इसको रिकमेंड भी करूंगा, अच्छा, राइट, और Right. लोगों को भी रिकमेंड करूंगा। सर्वम एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जैसा मैंने भी आपको पहले भी बताया था यार। देखो, घर सब बनाते हैं, हम घर के अलावा चीजें दे रहे हैं, सिग्नेचर दे रहे हैं इनफैक्ट। और अगर मैं बायर हूं ना, तो मैं ये देखूंगा कि आने वाली टाइम में मेरी फैमिली को और मुझे कितनी सारी चीजें कन्वीनियंस मिल जाएंगी, राइट। जिसके लिए मुझे कम्यूट करना पड़ेगा, जो भी हमने पहले बात भी करी कि उसके लिए मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, वो सारी चीजें बचेंगी। इनफैक्ट मुझे एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, राइट। और जब ये सारी चीजें होंगी ना, तो मुझे मेरे प्राइस पे अप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो मैं ये कहूंगा, मैं एक बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर हूँ, राइट। तो मैं इन्वेस्ट तो जरूर करूंगा सर्वम में, और मैंने किया भी है। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि 3 से 4 साल के हराइजन के अंदर अगर हम इसको देखते हैं, तो ये मेरा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ऑलमोस्ट मुझे डबल मिलना ही मिलना। सो यस, फिर मुझे भी अब लास्ट में डील करनी ही पड़ेगी, आपको इतना डील करनी इम्प्रेस कर पड़ेगी दिया ना। आपने मेरे को। I think that's the conversation we wanted to have today. Not just Sarvam, but why it exists. So thank you so much for joining us today and explaining our audience why do you need to invest in something big project. Thank you so much, Aditi. It's my pleasure.